Greetings 11th class political science students, welcome back to our channel. Today we are here back with the part 8 of the chapter legislature. In last class we have left the chapter over the topic that how does the parliament of our country control over executive, right? And in that we have discussed one part also, in which we have discussed deliberation and discussion, right? Today we are going to discuss from the second part, that is approval and ratification of laws. So let us have a look over this. Parliamentary control is also exercised through its power of ratification. A bill can become a law only with the approval of the parliament. मतलब ratification and approval. एक टाइप से उसको चेक भी करती है, अप्रूवल भी देती है, क्योंकि हमारी कंट्री में पार्लियामेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है. और एक बिल लॉ कब बनता है? जब उसकी अप्रूवल होती है पार्लियामेंट के थ्रू. जब तक पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करेगी, क्या आप बोल सकते हो कि वो बिल लॉ बन जाएगा? नेवर एवर इट इज पॉसिबल, राइट? तो हमारी कंट्री में क्योंकि एक बिल को लॉ बनने के लिए रिक्वायरमेंट है अप्रूवल की, किससे? पार्लियामेंट से. A government that has the support of disciplined majority may not find it difficult to get the approval of the legislature. But यही चीज़ जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, whenever we say कि एक पार्टी जिसको मेजोरिटी मिली हुई है, तो that is not having any kind of difficulty in implementing any kind of laws, any kind of policies. Why is it so? Because they are already having the support of the majority. And if they are already having the support of majority, it means that they do not have any kind of difficulty in implementing new policies, in the formation of new policies, right? So such approval however cannot be taken for granted. लेकिन इतना ज़्यादा, इतना easily आप इसको just grant में नहीं ले सकते हो. They are the products of intense bargaining and negotiation amongst the members of ruling party or coalition of parties and even government and opposition. इतना easy नहीं होता है लॉ बनाने की प्रोसेस. You are already aware that how typical it is, because in the last to last video we have already discussed na law making process completely. We have discussed all of the procedure which is followed for this particular process, right? So that's not that much easy task कि आपने, अगर आपने लॉ बनाना है, आपने उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया पार्लियामेंट में और पास हो गया. दैट इज नॉट दैट मच इजी टास्क, है ना? उसके लिए क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा इंटेंस बार्गेनिंग होती है ना, बहुत ज़्यादा नेगोशिएशंस होती हैं. और ये प्रॉब्लम और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है जब कैसी होती है, अब आप जब अगर आपकी कोएलिशन की गवर्नमेंट है, उसमें क्या होगा, अपोजिशन आइडियाज आपको और ज़्यादा मिलेंगे. तो जब भी लॉ बनने की बारी आती है तो इंटेंस बार्गेनिंग होगी, नेगोशिएशंस होगी. क्यों? क्योंकि रूलिंग पार्टी के मेंबर कुछ और बोलेंगे, राइट? रूलिंग पार्टी और कोएलिशन के मेंबर कुछ और बोलेंगे, और जो अपोजिशन वाले होंगे वो हमेशा क्या करेंगे, वो इसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करेंगे. बिकॉज इन अवर कंट्री बेसिकली अपोजिशन का काम यही है, राइट? इन अदर कंट्रीज ऑल्सो, बट हमारी कंट्री में क्या होता है, बिकॉज दे आर एबल टू एक्सेप्ट कि उनका एक सिंगल वर्क यही है कि उनको अपोज करना है पॉलिसीज को. तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, बार्गेनिंग करनी पड़ती है, नेगोशिएट करना पड़ता है. उसके अलावा क्या करना पड़ता है, रूलिंग और अपोजिशन पार्टी में जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, उन कन्फ्लिक्ट्स को ओवरकम भी करना पड़ता है. कोऑर्डिनेट करके एक ऐसा कंक्लूजन निकालना पड़ता है ऑन विच एवरी पर्सन कैन बी अग्री. नॉट एवरी बट एटलीस्ट मेजोरिटी कैन बी अग्री, right? If the government has majority in Lok Sabha but not in Rajya Sabha, as it has happened during the Janata Party rule in 1977 and NDA rule in 2000, the government will be forced to make substantial concession to gain the approval of both of the houses. अब लेकिन देखो, अगर हमने क्या डिस्कस किया कि अगर एक पार्टी की मेजोरिटी है तो लोकसभा में तो प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज इट इज द हाउस ऑफ द पीपल and people have elected one party as their representative, one party or one coalition you can say, and that's why they are representing whole of the country. So it will be no any kind of difficult task to get the majority from that portion, right? But now suppose Rajya Sabha is not directly elected by the people ना, हमने यही पढ़ा ना कि राज्यसभा को हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते. और जब राज्यसभा को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, बट हमने क्या स्टडी किया था कि लॉ मेकिंग प्रोसेस में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास सिमिलर पावर्स होती हैं, है ना? नाउ सपोज कि लोकसभा ने तो उस पर्टिकुलर बिल को पास कर दिया,
बट राज्यसभा ने उसको स्टॉप कर दिया। तो और ऐसा ऑलरेडी हैपन हो चुका है। कब? इन 1977 ऑल्सो एंड इन 2000 ऑल्सो। अब देखो क्या होगा, नाउ गवर्नमेंट इज वेरी मच अवेयर कि उनको राज्यसभा से भी अप्रूवल लेनी है, क्योंकि जब तक राज्यसभा से अप्रूवल नहीं ली जाएगी तब तक बिल आपका एक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद एक और प्रोसीजर बचे, दैट इज द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना। तो इसलिए अब क्या करेगी जो हमारी कंट्री की जो लेजिस्लेचर होगी, उसको क्या करना पड़ेगा, जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट होगी उसको कुछ कंसेशन करना पड़ेगा, यानी कि कुछ ऐसे डिसीजंस, कुछ ऐसे रिकमेंडेशन उनको राज्यसभा की माननी पड़ेंगी, सो दैट बोथ ऑफ द हाउसेस कैन बी एग्री ऑन द सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू। समझ आया? मतलब देखो, अगर लोकसभा ने तो पास कर दिया बिकॉज इट इज द हाउस ऑफ द पीपल, बट राज्यसभा ने क्या कर दिया, उसको पास नहीं किया। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, जो रूलिंग पार्टी है, गवर्निंग पार्टी है, उसको कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ कंसेशन करना पड़ेगा, सो दैट बोथ ऑफ द हाउसेस दे कैन हैव, यू कैन से दे कैन हैव अ कंसेंट एट लिस्ट, कि ऐसा लॉ बनाया जा सकता है, राइट। मैनी बिल्स सच एज लोकपाल बिल हैव फेल्ड, एनेक्टमेंट प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल वाज रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा। ये चीजें ऑलरेडी हैपन हो चुकी हैं कि कुछ बिल लोकसभा में तो पास हो गए, क्योंकि वहां पर वन पार्टी की डोमिनेंस हो सकता है। क्योंकि देखो, जैसे 2002 की बात करते हो तो आप क्या था, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो अलायंस आपकी कांग्रेस पार्टी का, तो उसकी गवर्नमेंट थी, तो लोकसभा में तो चलो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा ने उसको स्टॉप कर लिया, राइट। तो मतलब देखो, ये भी क्या मेथड हो गया, जो अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन होता है ना बोथ ऑफ द हाउसेस का, वो लोगों को कैसे अप्रूवल देते हैं, दैट इज इटसेल्फ अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव। ऐसा नहीं कि अगर एक हाउस ने उसको पास कर दिया तो क्या हो जाएगा, दूसरा हाउस भी उसको पास कर देगा, दैट्स नॉट देयर। एंड दैट इज द यूज ऑफ सेकंड चैम्बर ऑल्सो। हमने पढ़ा था ना, डू वी हैव अ नीड ऑफ बाइकैमरल पार्लियामेंट, तो इसीलिए हमें नीड है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं, हो सकता है कि मेजोरिटी की वजह से गवर्नमेंट उनको इजीली पास कर लेती है, but suppose if Rajya Sabha is not there, then there is no anyone who can control, who can checks the powers of the government. That's why we are having need of second chamber of the parliament also, right? अब हम रीड करेंगे फाइनेंशियल कंट्रोल, कि हमारी कंट्री का फाइनेंशियल कंट्रोल कैसे करती है हमारी कंट्री की लेजिस्लेचर, हमारी कंट्री की सेंट्रल पार्लियामेंट। अब देखो, एज मेंशन अर्लियर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इंप्लीमेंट द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट आर ग्रांटेड थ्रू द बजट preparation and presentation of the budget for the approval of the legislature in constitutional obligation of the government। अब देखो, ऑलरेडी हम लोगों ने मेंशन कर दिया ना कि जो फाइनेंशियल रिसोर्स हैं वो जरूरी, देखो फाइनेंस हर एक चीज के लिए जरूरी होता है, वेदर यू आर गोइंग टू फ्रेम पॉलिसीज, वेदर यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैम, है ना। सो एवरीथिंग देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, बट फ्रॉम वेयर द मनी वी आर गोइंग टू गेट, from where we will get the authority to expand any specific amount। अब यहां रोल किसका आएगा, हमारी पार्लियामेंट का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो बजट को ग्रांट करेगी, मतलब ग्रांट प्रोवाइड करवाएगी, कितने पैसे आप इस चीज पे खर्च कर सकते हो, इतने पैसे आप रिसर्च डेवलपमेंट पे खर्च करोगे, इतने पैसे आप एजुकेशन पे खर्च करोगे, इतने पैसे आप हेल्थ पे खर्च करोगे। Preparation and presentation of budget for the approval of the legislature is constitutional obligation, यानी कि ये उनके लिए एक टाइप से बाउंडेड है कि उनको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट भी करना पड़ेगा बजट को, और उसको अप्रूवल भी दिलवानी पड़ेगी गवर्नमेंट को। किससे, हमारी कंट्री की पार्लियामेंट से, लेजिस्लेचर से। समझ आया? इसका मतलब क्या हुआ कि कंट्री में कोई भी मनी ऐसे एक्सपेंड नहीं होगी जिसका गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा लॉजिकल रीजन नहीं है। और सिर्फ ये नहीं कि अगर गवर्नमेंट ने लिख दिया तो वो चीजें भी एज इट इज पास हो जाती हैं, वहां पर भी वो लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, और जब क्वेश्चन पूछते हैं तो उनमें क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ डिडक्शन दे प्रपोज फॉर दैट, कि ये इस एरिया के लिए इतनी मनी की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, पिछले साल इतना ग्रांट मिला था वो कहाँ गया, उस ग्रांट का आपने इतना % यूज किया, वेयर इज द रेस्ट ऑफ द अमाउंट। मतलब बहुत सारे आंसर्स होते हैं जो उनको आंसर देने पड़ते हैं। कोई किसी के बारे में, मान लिया गवर्नमेंट ने किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे 100 करोड़ का बजट प्रेजेंट किया है, लेकिन अपोजिशन क्या बोलेंगे कि ये एरिया तो बहुत छोटा है, यहाँ तो 80 करोड़ से भी काम चल सकता है। तो मतलब क्या होता है, दैट इट मीन्स इन दैट मैनर व्हाट इज हैपनिंग, दैट द
पार्लियामेंट इज कंट्रोलिंग द फाइनेंस ऑफ द कंट्री एज वेल, क्योंकि बजट को प्रेजेंट करवाना और बजट की अप्रूवल वो भी किसमें होती है, हमारी कंट्री की पार्लियामेंट, हमारी कंट्री की लेजिस्लेचर करेगी, राइट क्योंकि गवर्नमेंट बाउंडेड है ये सारी चीजें करने के लिए. दिस ऑब्लिगेशन अलाउज द लेजिस्लेचर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द पर्स स्ट्रिंग ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के पर्स स्ट्रिंग के ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल है. द लेजिस्लेचर में रिफ्यूज टू ग्रांट रिसोर्सेज टू द गवर्नमेंट, और लेजिस्लेचर मना भी कर सकती है ग्रांट देने के लिए. दिस सेल्डम हैपन्स बिकॉज द गवर्नमेंट ऑर्डिनरी एंजॉयज दिस सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी इन पार्लियामेंट सिस्टम. और ये क्या होता है, ये हालांकि बहुत कम हैपन होता है. कम क्यों होगा, मान लो एक पोजीशन अगेन वही कि अगर एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट बनाती है तो फिर तो उनके पास प्रॉब्लम ही नहीं है, वो बजट को इजीली पास करवा ले जाएंगे, है ना. अगर कोalition गवर्नमेंट है तो भी बजट पास इजीली हो ही जाता है, क्योंकि दो पार्टीज मिली हैं तभी तो गवर्नमेंट बनी है ना, मेजोरिटी है तभी वो लोग गवर्नमेंट में बैठे हैं. तो दोनों या 3 पार्टी के मेंबर मिलकर मेजोरिटी गेन कर लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इट इज इजी फॉर देम टू गेट द अप्रूवल, राइट, गॉट इट. अब उसके बाद फिर क्या होता है, nevertheless before granting money the Lok Sabha can discuss the reasons for which the government requires the money. और लेकिन गवर्नमेंट को जरूर बताना पड़ता है कि वो मनी किस चीज के लिए खर्च हो रही है. इट कैन inquire into cases of misuse of funds on the basis of the report of controller and auditor general and public account committees. अब देखो ये क्या होती है, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये अथॉरिटी है जिसको अपॉइंट करता है हमारी कंट्री का प्रेसिडेंट. ये क्या चेक करते हैं कि जो मनी हम लोगों ने ग्रांट की है वो मनी कितनी उस पर्टिकुलर चीज के लिए रिक्वायर्ड है. इन सारी चीजों की इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारे पास क्या है, पब्लिक अकाउंट कमेटीज हैं और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है. मतलब वो चेक करते हैं कि एक्चुअल में उस पर्टिकुलर चीज के लिए इतनी मनी रिक्वायर्ड है, राइट. बट द लेजिस्लेटिव कंट्रोल इज नॉट एम्ड एट फाइनेंशियल property. The legislature is concerned about the policies of the government that are reflected in the budget. Through financial control, the legislature controls the policy of the government. It means हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट है, हमारी कंट्री के जो लेजिस्लेचर है, वो पॉलिसीज के थ्रू डिफरेंट पॉलिसीज के थ्रू फाइनेंशियल कंट्रोल एस्टैब्लिश करती है. फाइन. इट मीन्स क्या आप लोगों ने समझा, देयर आर अ लॉट ऑफ मेथड्स बाय विच द लेजिस्लेचर ऑफ आवर कंट्री कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव. फाइन. उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड आप लोग पढ़ोगे वो क्या है, आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन. अब नो कॉन्फिडेंस मोशन ये वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है जो यूज कर सकती है हमारी कंट्री की पार्लियामेंट, हमारी कंट्री की लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को रिमूव करने के लिए. और यही वो मेथड है जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रेंज फियर जनरेट करके रखता है हमारी कंट्री की गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव के माइंड में, राइट. अब ये होता क्या एक्चुअल में, लेट अस डिस्कस इट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट इनेबल्स द पार्लियामेंट टू इंश्योर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी इज द नो कॉन्फिडेंस मोशन. जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, जो सबसे इंपॉर्टेंट वेपन्स है इन द हैंड ऑफ आवर पार्लियामेंट, वो यही है नो कॉन्फिडेंस मोशन. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट तब तक गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव तब तक एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी पे वर्क करेगी जब तक उनको हमारी कंट्री की लोकसभा में मेजोरिटी होती है, जब तक लोकसभा के मेंबर्स उनमें ट्रस्ट रख रहे हैं, जब तक लोकसभा के मेंबर्स को उनमें कॉन्फिडेंस है. जैसे वो बोलेंगे नो कॉन्फिडेंस तो गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी, राइट. As long as the government has the support of its party or coalition of the party, they have a majority in the Lok Sabha. क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि जब तक गवर्नमेंट है जब तक उसके पास सपोर्ट है, या तो वो एक सिंगल पार्टी डोमिनेंस कर रहे हैं, राइट, या फिर क्या है कोalition बनी हुई है. लेकिन वो एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी पे कब तक है, जब तक उनको मेजोरिटी मिली हुई है. फाइन. अब उसके अलावा the power of the house to dismiss the government is fictional rather than real. लेकिन देखो यहाँ पे क्या कि जो हमारी कंट्री की जो पावर है ना, हाउस, द पावर ऑफ द हाउस टू डिसमिस द गवर्नमेंट इज फिक्शनल रादर देन रियल. हालांकि ये कैसी होती है, फिक्शनल होती है रियल की कंपैरिजन में,
हालांकि कई बार क्या हुआ है, आफ्टर 1989 सेवरल गवर्नमेंट्स हैव बीन फोर्स्ड टू रिजाइन ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। कई बार क्या हुआ है कि हमारी कंट्री में ऐसा हुआ भी है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन देना पड़ा है। ओके, ईच ऑफ द गवर्नमेंट्स lost the confidence of the Lok Sabha because they failed to retain the support of their coalition partners। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने पढ़ा ना कि गवर्नमेंट तब तक गवर्नमेंट है जब तक उनको लेजिस्लेचर में सपोर्ट मिला हुआ है, मेजोरिटी मिली हुई है ना। लेकिन अगर एक पार्टी ने कंट्रोल किया मेजोरिटी तो दैट इज वेल एंड गुड, क्योंकि उनको फिर प्रॉब्लम होनी नहीं है। बट सपोज कि अगर अलायंस गवर्नमेंट बनी है, कोalition गवर्नमेंट बनी है, तो वहां पर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि वो कभी भी जो आप जिससे मेजोरिटी गेन हुई है वो कोalition वाले कभी भी अपना सपोर्ट वापस ले सकते हैं, और जैसे ही वो सपोर्ट वापस लेंगे तभी इसका मतलब क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन विल बी पास्ड। और नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या होगा, दैट गवर्नमेंट विल हैव टू रिजाइन। समझ आया? यानी देखो, नो कॉन्फिडेंस मोशन वो टूल है जो हमारे इलेक्शंस को 5 ईयर से पहले भी करा सकता है, गवर्नमेंट को कोलैप्स करा सकता है। और ये किस पोजीशन में सबसे ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगा, जब हमारे यहां गवर्नमेंट बनती है अलायंस या फिर कोalition गवर्नमेंट, क्योंकि एक सिंगल पार्टी का अगर कंट्रोल होगा तो इट्स नॉट इजी टू पास नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब देखो, अगर प्रेजेंट की सिचुएशन है, बीजेपी सिटिंग विद फुल मेजोरिटी, क्या आप नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकते हो? नेवर इट इज पॉसिबल। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आधे से ज्यादा मेंबर्स उनके ही हैं भाई, बीजेपी के हैं। व्हाई दे आर गोइंग टू कास्ट देयर वोट इन द फेवर ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, राइट? ऐसा कब होता है बेसिकली नो कॉन्फिडेंस वाला? क्योंकि देखो, ये जो 1989 टाइम पीरियड लिखा हुआ है ना, यहां से कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में एरा शुरू होता है कोalition गवर्नमेंट का। और जैसे ही कोalition गवर्नमेंट का एरा शुरू हुआ तो गवर्नमेंट बार बार बनी भी और बार बार कोलैप्स भी हो गई। तो जहां पर अलायंस गवर्नमेंट बनेगी वहां पर क्या होगा, अलायंस या कोalition गवर्नमेंट बनेगी, वहां पर आइडियाज में कन्फ्लिक्ट्स होंगे। और जैसे ही कन्फ्लिक्ट्स होंगे, अगर गवर्नमेंट ने, जिनके पास औरों के कंपैरिजन में ज्यादा वोट्स हैं, अगर उन्होंने उन पार्टीज की बात नहीं मानी जिन्होंने उसको सपोर्ट दिया, तो क्या बोलेंगे, वी आर गोइंग टू पास नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ना, ऑल दो इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल to control the executive, but we have seen that after 1989 the leaders are using it for their personal interest also। मतलब अगर उनको गवर्नमेंट को कोलैप्स करवाना है, अगर गवर्नमेंट उनके पर्सनल इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं कर पा रही है, देन ऑल्सो इट कैन बी पास्ड इजीली। बट कीप इन योर माइंड, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल, पावरफुल टूल विच कैन बी यूज्ड to control the powers of our executive। Got it? So what we are able to achieve, what we are able to get, thus the parliament can effectively control the executive and ensure a more responsive government। आपने जब सारी चीजें पढ़ ली, क्या क्या, जैसे डेलिब्रेशन और डिस्कशन हो गया, कंट्री का बजट हो गया, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया कि डिस्कशंस होते हैं, डिबेट होती है ना, उसके बाद आप लोगों ने पढ़ लिया नो कॉन्फिडेंस मोशन। सो वी हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स। और ये चीजें आपको क्या कर रही हैं, why we are having requirement of these things? To make an effective control over the government, to make our government more responsible, right? It is however important for this purpose that there is adequate time at the disposal of the house, the members are interested in discussion and participate effectively, and there is willingness to compromise amongst the government and the opposition। अब देखो ये क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इस पर्पज के लिए, कि क्या होगा कि देयर इज एडिक्वेट टाइम एट द डिस्पोजल ऑफ द हाउस, है ना, क्योंकि एक एडिक्वेट टाइम होता है हाउस के डिस्पोजल के लिए। इसीलिए क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं ना वो इंटरेस्टेड होते हैं डिस्कशंस में, डिबेट में, एंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, दे आर ट्राइंग टू डू कॉम्प्रोमाइज ऑल्सो, दे आर विलिंग फॉर दैट ऑल्सो। क्योंकि देखो, मान लिया गवर्नमेंट ने कुछ चीजें पास कर दी, पास करना चाह रही है, पास तो अकेले तो खैर नहीं करेगी, मतलब गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव ले रही है, गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं, बट अपोजिशन आर नॉट फेवरिंग इट। और अगर अपोजिशन स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, गवर्नमेंट विल हैव टू एक्सेप्ट सम ऑफ देयर आइडियाज, है ना। अगर मान लिया लोकसभा ने वो चीजें पास कर दी, राज्यसभा चाह रही है कि वो नहीं हो, ऐसी चीजें, इसमें कुछ और एड ऑन होना चाहिए, तो राज्यसभा उसको स्टॉप कर ले,
है ना। तो फिर क्या करेगी, अगर गवर्नमेंट को उसको पास करवाना है, सो देयर विल बी डिस्कशन एंड देयर विल बी कॉम्प्रोमाइज ऑल्सो, एंड दे विल ट्राई टू गेट ओवर दैट सिचुएशन वेयर एटलीस्ट दे कैन गेट मिनिमम कंसेंसस, कि एटलीस्ट ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है जिसके ऊपर दोनों के दोनों अग्री हो सकते हैं, पोजीशन गवर्नमेंट, लोकसभा, राज्यसभा, राइट। In the last 2 decades, there has been a gradual decline in sessions of the Lok Sabha and State Legislative Assembly and time spans on debates. हालांकि कई बार अभी क्या देखा गया है पिछले कुछ टाइम पीरियड में कि जो हमारी कंट्री में जो सेशंस होते हैं ना पार्लियामेंट के, वो कम होते जा रहे हैं। अब देखो, अगर सेशंस कम होंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो टाइम, जितना टाइम हमें एक पर्टिकुलर बिल के ऊपर डिस्कशन, डिबेट के लिए डिवोट करना था, वी आर नॉट हैविंग दैट मच टाइम टू स्पेंड ओवर इट। समझ आया, क्योंकि हमारे पास टाइम की लैक होगी, कमी होगी, और अगर ऐसा होगा तो हम उतना टाइम स्पेंड कर ही नहीं पाएंगे। Moreover, the houses of the parliament have been plugged by absence of quorum. अब देखो ये quorum क्या होता है, quorum होता है कि अगर पार्लियामेंट आपको चलानी है, तो अगर लोकसभा का मान लिया सेशन चलना है, और अगर वो सेशन आपको चलाना है तो कितने मेंबर होने चाहिए तब वो सेशन चलेगा, तो एटलीस्ट ये होता है 10% मेंबर्स की प्रेजेंस रिक्वायर्ड होती है। Boycott of session by the members of opposition which deprive the house the power to control the executive through discussion. अब देखो कई बार क्या होता है, जो हमारे हाउस ऑफ पार्लियामेंट है ना, उसमें उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स हालांकि वी आर एबल टू से कि हमारी पार्लियामेंट कंट्रोल करके रखती है एग्जीक्यूटिव को, बट इन लास्ट फ्यू ईयर्स वी आर एबल टू सी सम प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से ना वो उतना इफेक्टिव कंट्रोल हम नहीं कर पा रहे हैं। तो वो क्या क्या है कि एक तो जो हमारी quorum होती है वो ही एब्सेंस होती है, ये जितने मेंबर्स हमें डिस्कशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं उतने मेंबर प्रेजेंट ही नहीं होते। उसके अलावा कई बार क्या हो जाता है, अपोजिशन वाले ना सेशन को पूरा बाइकआउट कर देते हैं, और जब बाइकआउट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिस्कशन और डिबेट हो ही नहीं रहा, जिस चीज़ के लिए सेशन आया था वो सेशन, वो वर्क हो ही नहीं रहा है। और अगर वो सेशन नहीं हो रहा है, वो वर्क नहीं हो रहा प्रॉपरली, सो इट मीन्स व्हाट इज हैपनिंग, it will that will create a problem, fine, and it is going to create problem for the country because parliament is the representative of our country, and if the parliament is not able to control the executive part of the country, we cannot say that it will be able to effectively control the executive part. So if we want to make our executive more responsible, the parliament will have to be more responsible and more vigilant. Fine. So I hope everything till here is completely clear to all of you and you are able to understand it. If you are having any kind of doubts and query, feel free to ask your question in comment section. Next part we will discuss in next video. Till then, keep learning, stay connected. Thank you. Thanks a lot.